Hello, class 5 students. You all are warm welcome in your EVS class. Hope you all are doing amazing and studying by heart. I am your digital mentor. With me, you are going to learn all the concepts which are there in your EVS book. So, without doing any delay, let's get started with the very first chapter, chapter number 1 from Unit 1, and the name of the chapter is Interdependence in Nature. Unit 1, Our Living World. बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, जो हमारी प्रकृति है उसमें मौजूद लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे पे बच्चों निर्भर रहते हैं. What will be our learning point today? Ecosystem, abiotic component, abiotic component in an ecosystem, then dependence of living things. We have come to know that we depend not only on living things but also on non-living things. बच्चों हम living things पे भी तो depend रहते ही रहते हैं, लेकिन हम non-living things पर भी depend रहते हैं. हमारे existence के लिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको बच्चों क्या चाहिए? दे नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी. नाउ हियर वी हैव इकोसिस्टम. इकोसिस्टम बच्चों इंक्लूड करते हैं लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. ठीक है. एंड ऑल्सो बच्चों नॉन लिविंग एनवायरमेंट जैसे कि वेदर है, अर्थ है, सन है, सॉइल है, क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है. द ऑर्गेनिजम्स like plants, animal and microbes that make up the living part of an ecosystem, उन्हें हम biotic component कहते हैं. Non-living things such as soil, water, temperature and sunlight, they are found in ecosystem and they are known as abiotic components. Biotic living things and abiotic components that are natural things found in our nature, soil, water, temperature and sunlight. Animal जो है they depend on biotic and abiotic factor of for food, shelter and protection for their reproduction. और इसी continuous interaction को बच्चों जो होता है between plants and animal and microorganism को हम क्या बोलते हैं? Interdependence of plants and animals, living things और non-living things. चलिए बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं डिपेंडेंस ऑन अबायोटिक फैक्टर. जैसे कि बच्चों क्या है? आपकी एयर है. एयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैस का. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. कौन कौन सी है बच्चों? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मैनी मोर अदर गैसेस. प्लांट्स एंड एनिमल ये क्या करते हैं बच्चों? ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. रेस्पिरेशन जब करते हैं, ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और रिलीज क्या करते हैं बच्चों? रिलीज ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. ऑक्सीजन इज नीडेड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. Then we have water. Water क्या है? Water is very important abiotic factor. It is often said that water is life. जल क्या है? जल ही जीवन है. जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों उनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पानी की आवश्यकता पड़ती है. Plants must have water to grow because without water animals become weak and confused and they can die if they do not rehydrate. Then we have soil. Soil क्या है? Soil is often considered an abiotic factor since it is mostly made up of small particles of rock, sand and clay and it is mixed with decomposed plant and animal. Plant क्या use करते हैं? They use their root to get water and nutrients from the soil. Here we have the photograph. You can see here we have plant. Leaves are the kitchen of the plants and they required sunlight to grow to make their food. The sunlight सन भी बच्चों एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का. प्लांट यूज करते हैं सोलर एनर्जी को टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड सीड्स नीड्स वार्मथ एंड सन फॉर जर्मिनेशन. और ये उनको सन जो है हमारा वो प्रोवाइड करता है क्या? वार्मथ एंड लाइट टू एनिमल्स. सो बच्चों आप देख सकते हो कैसे जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग फैक्टर्स के लिए. Now, biotic factors, interdependence of food. So, biotic factors are all of the living things and in an ecosystem such as plant and animal. The living thing ये भी interact करती है एक दूसरे से बहुत सारे तरीके से. The interdependence of plants and animal for food can be clearly seen through food chain. ठीक है. अब हम ये food chain पढ़ेंगे बच्चों तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे प्लांट और एनिमल सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. कैसे? चलिए देखिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए. सबसे पहले बच्चों अगर सन ही नहीं होगा
तो प्लांट ही नहीं ग्रो करेगा, सन ही नहीं होगा तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। अब सन पे डिपेंडेंट है बच्चों ये प्लांट, ये ग्रास, ग्रास पे डिपेंडेंट है ये ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर कौन खाता है बच्चों? मेढक। तो मेढक डिपेंडेंट है ग्रास हॉपर जैसे जानवरों के लिए। सांप किसको निगल लेता है बच्चों? मेढक को। तो सांप डिपेंडेंट है मेढक पर। और बच्चों सांप को कौन खा जाता है? चील या बाज जैसे पक्षी खा जाते हैं। तो ये एक फूड चेन है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है बच्चों जो निरंतर चलती रहती है फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट। Now it is a chain of eating and being eaten. The food chain consists of three main parts. सबसे पहले बच्चों थ्री मेन पार्ट्स में आपके आ जाते हैं प्रोड्यूसर, वन हु प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्या कहते हैं? These are organisms called producer. They can manufacture their own food from simple substance through the process of photosynthesis. So बच्चों प्लांट्स इकलौते ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो ये प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपना खाना बनाते हैं। एंड ये अपना खाना बच्चों प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर लीफ। That is why the leaves are called food factory of plant. Now producer क्या है? Producer are mainly of first stage of the food chain, for they are the one of sustains and produce food for other living creatures. Then we have consumers. So animals, बच्चों वो खुद का खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकते directly from any source of energy, so they eat plants or other animals, so they are called consumers. Now depending on their food habit, consumers जो बच्चों वो 5 कैटेगरी में है। सबसे पहले बच्चों कंज्यूमर जो है आपके हर्बीवोरस हैं, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं बच्चों, जो शाकाहारी होते हैं। दे आर कंज्यूमर्स हु ईट प्लांट, लीफ, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स एक्सेट्रा। एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हॉर्स, गोट, रैबिट, एलिफेंट एक्सेट्रा। प्लांट्स eater are vegetarian animals, so the meaning that they do not eat meat of the other animals. Here we have herbivorous animals picture, then we have carnivorous मांसाहारी जानवर। So these are animals that eat meat of other. ये जानवर दूसरों के मीट मांस खाते हैं बच्चों, फ्लैश खाते हैं, जैसे कि बच्चों कुत्ता है, सांप है और हॉक है। They don't eat plants. ये प्लांट्स नहीं खाते, ये केवल मीट ही खाते हैं। In turn, some secondary animals are eaten by larger predators. Mongoose eat snakes. They form the next level called territory consumers. Carnivorous possess sharp pointed curved teeth. उनके दांत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ताकि वो फ्लैश को अच्छे से टीयर कर सके। बर्ड्स के पास बच्चों शार्प क्लॉज होते हैं और उनकी बीक होती है ताकि वो फटाक से अपने शिकार को फंसा सके अपने बीक में और अपने क्लॉज से शिकार को पकड़ सके। ओमनीवोरस बच्चों सर्वहारी, जो सब खाते हैं, जो घास भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। सो दीज आर द कंज्यूमर हु एक्चुअली ईट ईदर प्लांट्स, एनिमल्स, मीट। सम एग्जांपल कौन कौन से हैं बच्चों? रैट, चिकन, मैन दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैन भी, हम मनुष्य भी बच्चों क्या है? ओमनीवोरस है। ओके, नाउ पैरासाइट क्या होता है बच्चों? एनिमल्स जैसे कि लीच है, फ्लाइज है, फ्लीज है एक्सेट्रा, ये दूसरे जानवर पर निर्भर करते हैं, इन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं, have hooks, claws and suckers to attach to their host, and generally parasites have either a sucker जैसे कि लीच है, और a piercing और sucking type of mouth। बच्चों जैसे मच्छर है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो ना घास खाता है ना दूसरे जानवर को खाता है, लेकिन वो क्या करता है? वो किसी ना किसी की बॉडी से कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट उसका खाना होता है। जैसे मच्छर है, मच्छर हमारा खून पीकर ही जीवित रहता है, ठीक है। नाउ वी हैव स्कैवेंजर्स। सो एनिमल जैसे कि वल्चर है, जैकॉल है, क्रोज है, ये फ्लैश खाते हैं बच्चों मरे हुए जानवर का, इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, और ये एनवायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं, क्योंकि मरे हुए जानवर को खा जाते हैं तो वहां कोई सड़न नहीं होती, एनवायरमेंट भी बच्चों क्लीन हो जाता है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स रिफर करते हैं स्मॉल कंज्यूमर्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी एंड वर्म्स दैट कॉज द डीके ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। दे समटाइम कॉल टू एन माइक्रो कंज्यूमर बिकॉज बहुत सारे इनमें से है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, एवरी पार्टिसिपेंट इन एन इकोसिस्टम हैज इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले। इफ वन बिकम्स मोर डोमिनेंट, अगर कोई ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा तो इकोसिस्टम बच्चों जो है वो सही से नहीं चल पाएगा। फूड चेन जो है एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस करती है बच्चों लाइफ की। नाउ इन वन एनिमल सोर्स, इफ वन एनिमल सोर्स ऑफ द फूड डिसअपियर, अगर एक भी फूड डिसअपियर हो जाता है तो पूरी फूड चेन जो वो ब्रेक हो जाएगी। सच एज फ्रॉम ओवरफिशिंग और हंटिंग, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है बच्चों जिन जो फूड चेन को अफेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी फूड चेन को अफेक्ट कर रही है। So we should not disturb this balance in the ecosystem through our activities. अब बच्चों हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स।
प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे depend one another not only for food but also for many other things. They cannot survive without each other. Next we have dependence ऑफ एनिमल ऑन प्लांट्स। अब बच्चों जो एनिमल्स है वो प्लांट पे कैसे डिपेंड रहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कुछ एनिमल हेर्बिवोरस रहते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। सो मैनी प्लांट्स लाइक बर्ड्स, स्क्वायरल एंड इंसेक्ट्स, और ये अपना घर भी बनाते हैं। कुछ प्लांट्स जो है बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पेड़ पर ही अपना घर बनाते हैं। प्लांट्स बच्चों ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर पे, जो बच्चों एनिमल्स लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, इनहेल करते हैं। एनिमल रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो बच्चों प्लांट तो यूज करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं दैट हेल्प प्लांट रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन। बीज एंड बटरफ्लाइज व्हाइल कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, दे कैरी पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। एनिमल्स बच्चों हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्जल में, दे ईट फ्लैशी फ्रूट्स एंड थ्रू अवे द सीड्स और गिव अ फ्री राइड टू सीड्स विद हुक्स एंड स्पाइन्स, scattering them unknowingly. Then we have dependence of human beings on plants and animals. So we use animals जैसे कि बच्चों हॉर्स है, डंकी है, कैमल्स है, खेत की जुताई के लिए, कार्ट्स पुलिंग करने के लिए और कैरिंग भार को, लोड्स को बच्चों कैरी करने के लिए। एनिमल्स, कुछ एनिमल्स बच्चों बहुत यूजफुल एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वूल है, लेदर है, हॉर्न्स है, ये यूज होता है कपड़ा, शूज और बैग्स बनाने के लिए। ठीक है, हम डिपेंड करते हैं बच्चों प्लांट पे वुड के लिए, टिम्बर के लिए, जिनसे हम फर्नीचर बनाते हैं। और हाउसेज में बहुत सारी ऐसी वुडन चीज होती है, टेबल है, चेयर है, विंडो है, उसमें लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। प्लांट फाइबर्स बच्चों यूज होते हैं टू मेक क्लोथ्स, रोप, पेपर एक्सेट्रा। नंबर ऑफ डाइज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स टू कलर आवर फैब्रिक। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं बच्चों, दे हैव ऑयल रिच सीड्स फ्रॉम व्हिच ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, एंड दे हैव वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ लुब्रिकेंट, फ्यूल, लाइटनिंग इन पेंट्स, varnishes, food preservative एक्सेट्रा। मेडिसिन एंड रबर रेसिन्स भी बच्चों ऑब्टेन होते हैं प्लांट से। Here you can see the examples of plant. Okay, dear Lana, that's all about this very interesting chapter. Now let us summarize few points from the chapter. Ecosystem include करता है सभी plants और animal और organisms को, interdependent of plants and animals, और food can be clearly seen through the food chain. Green plant जो है उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। हर्बिवोरस, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। स्कैवेंजर्स हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, क्यों? क्योंकि वो मरे हुए जानवर को खाते हैं। ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। That's all about the chapter. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much.